स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। जो चीज़ें पढ़ी थी हमने उसको रिफ्रेश करने के लिए मैं आपसे पहले एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ऐसा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़े एक लड़के ने एक बॉल को लेट अस से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक्स डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई डायरेक्शन इज वर्टिकल। Ball has been projected with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 53 degree with horizontal. The first question is, after how much time the velocity will make an angle of 37 degree with horizontal. Initially the direction of motion is making an angle of 53 degree with horizontal. As the ball moves up, as the projectile moves up, its direction of motion changes. That means direction of velocity changes. After some time, the velocity will be making a smaller angle with horizontal, 37 degree. So exactly after how much time the velocity will make an angle of 37 degree with horizontal. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। सॉल्यूशन करने के बाद वीडियो रिज्यूम करके मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। जैसा पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था, द प्रोजेक्टाइल मूव्स ऑन ए पैराबोलिक पाथ। ये प्रूव अभी हमने नहीं किया है, करेंगे आज की क्लास में। But I told you that the path of the projectile is a curve, that is a parabola. So after some time, let us say projectile is somewhere here and its velocity vector v is making an angle of 37 degree with horizontal, right? So we have to find this time when velocity will make an angle of 37 degree with horizontal. In any question of projectile motion, the first thing that we need to do is we have to split the motion in two perpendicular directions. So in the beginning, the initial velocity, which we denote by u, has two components. The horizontal component is u cos theta, 20 cos 53 degree. What is value of cos 53 degree? Some of you must be remembering this. This right angle triangle having side length of 3, 4 and 5 has this angle approximately equal to 37 degree and this angle is very close to 53 degree. So cos of 53 degree from this right angle triangle, you can see it is 3 by 5, 0.6. So 20 cos 53 degree, 20 into 0.6, it is 12 meter per second. Horizontal velocity is 12 meter per second. What about the vertical velocity? I mean vertical component of initial velocity. It is u sin theta, 20 sin 53 degree. In the same triangle, you can see that sin 53 degree is close to 4 by 5, 0.8. So 0.8 into 20 is 16 meter per second. हम ऐसा सोचेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दी वो एक वेलोसिटी नहीं, एक साथ हमने दो वेलोसिटी दी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 12 और एक वर्टिकल डायरेक्शन में 16. And the most important feature of projectile motion is that the horizontal component of velocity never changes. We ignore air resistance in all our discussion, and in absence of air resistance,
there is no horizontal force acting on the projectile, which means there is no horizontal acceleration. In horizontal direction, velocity never changes. So when the projectile is at this point, its x component of velocity Vx, it is same as ux, that is 12 meter per second. Now the velocity makes an angle of 37 degree with horizontal component is 12. Can we find vertical component of velocity with this set of data? The answer is yes. Simple vector resolution याद करो. ये मान लो यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट है Vy, x कंपोनेंट 12 आपको पता है. So this is a vector making an angle of 37 degree with horizontal and its x component is 12, and we are wanting to calculate its y component. What we can do is we can write Vy by Vx is tan of 37 degree. You can draw an independent diagram. This is V, x component is 12, y component is unknown, and this is 37 degree. So obviously this y component by this x component is tan of 37 degree, and tan of 37 degree is 3 by 4. Therefore, Vy is 3 by 4 into Vx. What is Vx? 12. So 3 by 4 into 12 is 9 meter per second. So at the point where velocity makes an angle of 37 degree with horizontal component is 12 and vertical component is 9. So you need to pay attention to this, that vertical component of initial velocity is 16 and now it has reduced to 9. So basically question is asking you to find the time when vertical component of velocity reduces from 16 to 9. That's all. Horizontal velocity never changes. So when vertical component of velocity, it is decreasing, when it becomes equal to 9, velocity will make an angle of 37 degree with horizontal. So when you are supposed to think about y component of motion, vertical motion, I gave you a tip in the last class that think about a simple one dimensional motion. Think as if a ball has been projected vertically up at a velocity of 16 meter per second like this. वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉल का जो मोशन है बेसिकली वही मोशन प्रोजेक्टाइल का है. जितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा उतनी हाइट तक प्रोजेक्टाइल जाएगा. जितने टाइम में ये टॉप पे होगा उतने ही टाइम में प्रोजेक्टाइल भी टॉप पे होगा. यहां और यहां सिर्फ एक फर्क है. दिस हैज गॉट नो हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दिस वन is continuously traveling in horizontal direction with a constant speed of 12 meter per second. There is no other difference. So forget about this question now. Think about this one. The question is asking you to find the time when velocity of this stone will become 9. So this is a very simple question. We can simply use this equation. V is equal to u plus 80 in y direction. Y component of velocity is 9. Initial is 16. G की वैल्यू 10 ले लेते हैं यार आसान कैलकुलेशन के लिए. So t is equal to 16 minus 9, 7 by 10, 0.7 second. Well, many of you must have solved this question on your own and must have got this answer. But please think, this is not the only possible answer here. The way question has been framed, there is one more possible answer to this. So please pause the video and think about another time when velocity will make an angle of 37 degree with horizontal. You do the question. In the meantime, I will have a cup of coffee and then I will be back to you. मैंने आपसे कहा कि एक और टाइम ऐसा पॉसिबल है जब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाएगी.
प्रेजेंटली ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, इट इज असेंडिंग. when it starts to descend, ठीक इसके सामने इस पॉइंट पे the velocity is like this and it again makes an angle of 37 degree with horizontal. Actually, path of projectile is symmetrical about this vertical line. Mirror image है. यहाँ से अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे तो इधर और इधर का पाथ एकदम मिरर इमेज है. तो डाउनवर्ड जब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होता है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है. इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहां पे जाके vy 0 हो गया एंड देन अगेन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. x component of velocity never changes. So here also Vx is 12 meter per second and you can make a blind guess that Vy is 9 meter per second. So Vy is 9, Vx is 12, this angle will be 37 degree. जैसे यहाँ ट्रायंगल था वैसे ये ट्रायंगल है. tan 37 degrees 9 by 12, 3 by 4. Here also tan 37 degrees 9 by 12, 3 by 4. So there will be a second time when velocity of projectile makes an angle of 37 degree with horizontal. How to calculate that time? How to find this time? Once again, consider motion of one dimensional motion of this stone. This stone continues to go up. It rises to this height. इसके और इसके मोशन में क्या फर्क है? यहाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, यहाँ नहीं है. Y component of velocity becomes 0 here. This stone stops here. Now the projectile begins to descend. Means this stone starts falling back. इस स्टोन का जैसा मोशन हो रहा है बिल्कुल वही मोशन y डायरेक्शन में यहाँ है, सिर्फ एक डिफरेंस. Throughout the time of flight, this particular projectile is traveling horizontally with a constant speed of 12 meter per second. So this starts falling down. When it reaches here, its velocity is, let us say, 9 meter per second. So you project a stone in vertically upward direction with a velocity of 16. It goes up to the maximum height, takes a U-turn. Now it is falling back and its velocity is 9 meter per second downward. The time at which the velocity becomes 9 meter per second downward, at that particular time, velocity of projectile will be like this, making an angle of 37 degree with horizontal. This will never change. So what is changing this? 16 से घट के 9 हुआ, 0 हुआ, अब डाउनवर्ड 9 हो गया. तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 16 की वेलोसिटी से फेंका, कितनी देर के बाद वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9 हो जाएगी. सो वंस अगेन वी विल यूज द सेम इक्वेशन, दिस इक्वेशन. रिमेंबर दीज इक्वेशंस आर वेरी इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड यू टर्न. आपको दो पार्ट में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि यहां से यहां अलग सोचा फिर यहां से यहां, नथिंग लाइक दैट. जस्ट डू इट इन वन स्टेप. द ओनली प्रिकॉशन दैट यू हैव टू टेक इज ask this equation when velocity will become minus 9, because downward 9 means minus 9. If upward direction is positive, how do we tell this equation that velocity is downward 9? We have to put a minus sign. Minus 9 means downward direction में 9 and the initial velocity uy is plus 16. Acceleration due to gravity is continuously downward 10 minus 10 t. So this gives you 16 plus 9, 25 by 10, 2.5 second. So first, after projection, at a time of 0.7 second, velocity makes an angle of 37 degree with horizontal, and thereafter there comes a second time, that is 2.5 second. We are counting time from this instant.
from the instant you have projected the stone, after 2.5 seconds, velocity will again make an angle of 37 degree with horizontal. This is while the projectile is descending. So this is the complete answer, that there are two answers. Now a quick question. What is the least speed of projectile during its course of flight? जब ये प्रोजेक्टाइल हवा में उड़ रहा है, उसके पूरे मोशन में सबसे छोटी स्पीड कितनी थी उसकी? आप में से शायद सभी ने इसका आंसर दिया होगा. The speed is smallest at the topmost point. There is no y component of velocity. We have only x component of velocity, and which is fixed 12 meter per second. So smallest speed of projectile is at the top, and that is 12 meter per second horizontal. Right? One more thing. Can you tell me what will be direction of velocity at the instant projectile is about to hit the ground? प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करने ही वाला है, इस समय इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट एंगल द वेलोसिटी मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल? फिर से एक बार वीडियो पॉज करके जरूर सोचिए. आंसर है सेम 53 डिग्री. ये प्रोजेक्टाइल जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला है. इसकी वेलोसिटी पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग ऐसी है. एक्स कॉम्पोनेंट Vx never changes. It is same 12 meter per second throughout the motion. And the y component of velocity must have become equal to 16 meter per second. This original velocity. How do I know this? फिर से याद करो. एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर 16 की स्पीड से फेंका, जब ये वापस लौटकर यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 16 डाउनवर्ड. सो सेम थिंग विल बी ट्रू फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो एज फार एज y डायरेक्शन इज कंसर्न. द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 16 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर completing its course of motion, when it is about to hit the ground, again the velocity in y direction is 16 up, now it is 16 down. So y component of velocity is 16, x component of velocity is 12. It never changes. So again you have same components of the two vectors, only thing is y component of velocity has got flipped over. So naturally this angle is 53 degree. Tan theta will be 16 upon 12. 16 upon 12. 16 upon 12 is 4 by 3. 4 by 3 tan theta, which means theta is 53 degree. It is all the same, only thing is this velocity direction has flipped. This remains same. This Vy has inverted its direction. So while hitting the ground, projectile again makes an angle of 53 degree with horizontal. देखो मोटी बात, यहां पे जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, इसके ठीक सामने फिर से सेम एंगल बनाएगा. इस लोकेशन पे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, यहां पे फिर से वही एंगल बनाएगा. ये थीटा, ये भी थीटा. यहां पे जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, जस्ट यहां पहुंचकर फिर से वही एंगल बनाएगा. The path is exactly symmetrical about this vertical line. The two sides are mirror image of one another, right? So next, let us derive the trajectory equation of a projectile. Students, let us derive the trajectory equation of a projectile. Trajectory equation is basically equation of path. Consider a projectile projected with velocity u making an angle theta with horizontal. Horizontal direction has been taken as x direction and vertical direction has been taken as y direction. Now, x component of initial velocity is u cos theta and y component of initial velocity is u sin theta. Trajectory equation means a relationship between x and y coordinates of the projectile.
an equation which can be used to trace the path of the projectile. You will understand this in a little while. Suppose a time t after projection, the projectile is somewhere here. Coordinates of this point are x and y. T second after projection, the projectile is here and coordinates of this point is x comma y. What does it mean? This length is x, right? And this height is y. So coordinates of projectile are x and y means horizontal displacement of projectile from its starting point is x and vertical displacement of the projectile from its starting point is y. Can you write x and y in terms of t? Very easy. X coordinate of the projectile at time t. At time t, the coordinates are u cos theta t and u sin theta t minus half gt square. देखो प्रोजेक्शन के t सेकेंड के बाद x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इन x डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल वाज ट्रैवलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ u cos थीटा. सो इन टाइम t इट हैज ट्रैवल्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ u cos थीटा इनटू t. u cos थीटा की कांस्टेंट स्पीड से प्रोजेक्टाइल आगे चल रहा है. x डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड मोशन है, हर समय u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा. तो t सेकेंड में वो डेफिनेटली u cos थीटा इनटू t इतना डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है. दिस इज द x कोऑर्डिनेट. व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट? y डायरेक्शन में जब भी मोशन को आपको एनालाइज करना हो, थिंक ऑफ दिस वन डायमेंशनल मोशन. एक पत्थर को uy वेलोसिटी से ऊपर फेंका, u sin थीटा जितनी है उतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका. ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, रुकेगा और फिर नीचे आएगा. इसके मोशन और इसके मोशन में कोई फर्क नहीं है. मामूली सा फर्क ये है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और जिस पीरियड में ये ऊपर गया और नीचे आया उस पीरियड में ये प्रोजेक्टाइल कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा. ऊपर ये भी वैसे ही गया, नीचे वैसे ही आया, बट थ्रू आउट द पीरियड ये एक्स डायरेक्शन में इस कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा था. जब मुझे जानना हो कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पे कितना है, तो मैं इस कर्व पाथ को देखूंगा तो परेशान हो जाऊंगा. नहीं, मैं इस वन डायमेंशनल मोशन को देखूंगा कि भाई यू वाई स्पीड से ऊपर फेंका, टी सेकेंड के बाद ये वाला पत्थर जिस हाइट पे है उसी हाइट पे प्रोजेक्टाइल भी है. देयरफॉर y इस पत्थर के लिए डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे क्या लिखेंगे? ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. g निगेटिव है, डाउनवर्ड, वही लिखा है मैंने. अपवर्ड वेलोसिटी u sin थीटा t ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सो इसेंशियली दीज टू इक्वेशंस आर ट्रैजेक्टरी इक्वेशन. अगर ये दो इक्वेशन आपको पता है ना, तो आप प्रोजेक्टाइल का पाथ ट्रेस कर सकते हो. कैसे भाई? ऐसे ऐसे. टाइम t मान लो 0, टाइम 0 पे प्रोजेक्टाइल कहां है? इसमें t0 रखो, इसमें t0 रखो, तुमको x और y कोऑर्डिनेट मिल गए. तुम्हें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई. टाइम 1 सेकेंड लिखो यहां और यहां, तुमको x और y कोऑर्डिनेट मिल गए. टाइम 2 सेकेंड लिखो यहां और यहां, तुमको x और y के वैल्यू मिल गए, सो ऑन सो फोर्थ. तो टाइम 1 सेकेंड पे प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है आपको. टाइम 1 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट 1 मीटर, y कोऑर्डिनेट 3 मीटर प्रोजेक्टाइल है. टाइम 2 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट 12 मीटर, y कोऑर्डिनेट 15 मीटर प्रोजेक्टाइल है. टाइम 3 सेकेंड पे प्रोजेक्टाइल यहां है. ऐसे हर टाइम पे आप x और y जानते हो, टाइम यहां सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको x और y मिलते जाएगा, बिकॉज u एंड थीटा आर गिवन नंबर्स. तो अलग अलग टाइम पे जब आप प्रोजेक्टाइल का x और y कोऑर्डिनेट जानते हो, दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल 1 सेकंड बाद यहां था, 2 सेकंड बाद यहां था, 3 सेकंड पे यहां है, 4 सेकंड पे यहां है, 5 सेकंड पे यहां है. इन सभी डॉट्स को कनेक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? उसका पाथ, उसका लोकस. सो दैट इज द पाथ इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशन इसेंशियली पाथ इक्वेशन है. मैथमेटिक्स की भाषा में ये ट्रैजेक्टरी इक्वेशन है विथ t एज पैरामीटर. हम
t को अगर एलिमिनेट कर दें तो वी विल गेट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, एंड दिस इज हाउ वी डू इट फ्रॉम इक्वेशन 1. t is x by u cos theta. t is x by u cos theta. Put this in equation 2. Put this in equation 2 and you get y is equal to u sin theta into t. ये देखिए t की जगह पे ये लिख दिया, t की जगह पे x by u cos theta यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस हाफ g t स्क्वायर. कुछ नहीं किया, यहां से t निकाला x by u cos theta और t की इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया. y इज इक्वल टू u sin theta इंटू t. t की जगह पे लिखा x by u cos theta, हाफ g t स्क्वायर, t की जगह लिखा x by u cos theta. नाउ जस्ट do some simplification. U cancels out. It is x into sin theta into cos theta, that is sin theta by cos theta, that is tan theta. Tan theta x minus this is g to u square cos square theta into x square. U cancels out, tan theta x, g by 2 u square cos square theta x square. This equation is known as trajectory equation of the projectile. This is a direct relationship between x and y. What does it mean? मैं इससे डायरेक्टली पूछ सकता हूं कि जब x कोऑर्डिनेट 1 मीटर है तो बताओ y कोऑर्डिनेट क्या है, ये बता देगा. x की वैल्यू 1 रखिए, y बता देगा. x कोऑर्डिनेट जब 2 मीटर हुआ तो बताओ y कोऑर्डिनेट कितना है, ये बता देगा. x 3 मीटर हुआ तो y बताओ कितना है, ये बता देगा. x3 पे y इतना, x2 पे इतना, x1 पे इतना. इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दें, यू गेट द पाथ इक्वेशन. सो ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, all points whose coordinates x and y satisfy this equation, they will lie on the path of the projectile. अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो this is essentially of this form. This is a number. For example, if projection angle is 60 degree, then tan 60 degree is √3. If projection angle is 60 degree, then cos 60 degree is 1 by 2, you know that. U is a given number, 10 meter per second, 20 meter per second. G is a known number. तो ये एक नंबर है, इसकी वैल्यू है 2.8, 11, 13, 15, 20, 11, कुछ भी, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है. सो ए कांस्टेंट a into x minus a constant b into x square. A and b are constants. So you already know that if y is a quadratic function of x, then graph of y versus x is a curve that is known as parabola. So relationship between y and x coordinate of a projectile is of this nature. The graph of y versus x will be a parabola. So path of a projectile, which is essentially graph of this equation, is a parabola. So the path is parabolic. So we conclude that path of a projectile is parabolic. स्कूल एग्जाम में प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी इक्वेशन डिराइव करो, ऐसा क्वेश्चन आता है. थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट path of a projectile is a parabola. So what you need to do is these simple steps. To make you understand the use of this equation, I'll give you a simple problem. इस ट्रैजेक्टरी इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करके हम कई बार कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एक एग्जांपल ये एक वॉल है, वर्टिकल वॉल. इट इज अ वेरी टॉल वॉल. यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड यू प्रोजेक्ट ए स्टोन एट a speed of 20 meter per second, making an angle of 60 degree with horizontal.
ये एक बहुत ऊंची दीवार है, इस दीवार से 10 मीटर दूर आप खड़े हैं और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे आपने एक पत्थर को फेंका। ये पत्थर ऐसा पाथ लेके दीवार को हिट करता है। आपको बताना है at what height the stone will hit the wall, at what height h the stone hits the wall, at what height h the stone hits the wall. For simplicity, rather for clarity, take this direction as x and this direction as y axis. O is the origin, this is x axis, this is y axis. What is the question basically asking you to do? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इस पाथ पे चला, जिस वक्त उसका x कोऑर्डिनेट 10 मीटर है उस समय उसका y कोऑर्डिनेट क्या है। जिस समय प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट 10 मीटर है उस समय उसका y कोऑर्डिनेट क्या है। जो उसका y कोऑर्डिनेट है वही तो h है, वही हाइट है। सो एट व्हाट हाइट द प्रोजेक्टाइल इज देयर व्हेन इट्स x कोऑर्डिनेट बिकम्स 10 मीटर, दैट इज द क्वेश्चन एंड द आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड by direct use of this equation. Direct use of this equation. This equation gives us the height which we are writing as h. This equation gives us the height when x coordinate is 10 meter. देखिए, इस इक्वेशन से हमने पूछा कि भाई x कोऑर्डिनेट जब 10 हुआ तो y बताओ। हमने लिखा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, x की वैल्यू 10 मीटर, g की वैल्यू 10 मीटर, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, x की वैल्यू 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी u 20 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 60 डिग्री है। बताइए कि जब x 10 मीटर हुआ तो y की वैल्यू क्या है। यही क्वेश्चन है। तो जब x 10 मीटर हुआ y की वैल्यू क्या, यू कैन कैलकुलेट दिस, tan 63 डिग्रीज √3 एंड cos 60 डिग्रीज 1/2, √3 को 1.7 लिख दीजिए लगभग। तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ हाइट h। देखो, सपोज तुम्हें ट्राइजेक्टरी इक्वेशन नहीं याद है 1 मिनट के लिए, तो वो जो दो इक्वेशन 1 और 2 जिनमें से टाइम को एलिमिनेट करके हमने ट्राइजेक्टरी इक्वेशन बनाई थी, उन दो इक्वेशन को यूज करके हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोज टू इक्वेशंस आर इसेंशियली दिस इक्वेशन ओनली, दे आर दी ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस। कैसे, थोड़ा सा हमें ऐसे समझना पड़ेगा। द ऑल्टरनेटिव मेथड कैन गो लाइक दिस, वी विल से दैट वी हैव टू फाइंड हाइट एट द टाइम x coordinate of the projectile, horizontal displacement of the projectile is 10 meter. Now let us say at time t the projectile hits the wall. What will be value of t? It can be calculated easily. Time when the wall is hit by the projectile. Very simple. It is 1 second. x डायरेक्शन का जो x डायरेक्शन में एक ही इक्वेशन होता है बेटा, x इज इक्वल टू ux इंटू टी। x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट वेलोसिटी ux से चल रहा है, हर समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, हर समय जो इनिशियल वेलोसिटी तुमने दी x डायरेक्शन तो बस कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर यहां से आया, 20 cos 60 डिग्री, cos 60 is half, x component of velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। तो प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर आगे आया है, यहां है, तो दीवार से थोड़ी टकराएगा।
दीवार तो 10 मीटर दूर है, तो प्रोजेक्टाइल दीवार से टकराया, इसका मीनिंग ही हुआ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 मीटर हो गया। जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 मीटर हुआ, उसी समय वो प्रोजेक्टाइल दीवार से टकराएगा, नहीं तो वो दीवार से टकराया ही नहीं। प्रोजेक्टाइल दीवार से टकराया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 10 मीटर हुआ। एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड 10 से चल रहे हैं और वेलोसिटी क्या है ux 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। 10 मीटर दूर जाना है 10 की कांस्टेंट स्पीड से, 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड इज 1 सेकेंड। इट इज गारंटीड दैट in 1 second the projectile will cover a horizontal distance of 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस अगर इसने ट्रेवल कर लिया तो वो दीवार से तो टकरा ही गया। सो वी विल कैलकुलेट व्हाट इज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस टाइम ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जब हुआ समय, उस समय प्रोजेक्टाइल का हाइट क्या है, ये जानने के लिए हम फिर से वन डायमेंशनल मोशन को देखेंगे। वाई डायरेक्शन में कुछ भी समझना है, इस क्वेश्चन को हटाओ। वन डायमेंशनल मोशन, इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? 20 sin 30 डिग्री √3/2, 10√3। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 10√3। हम सोचेंगे एक अलग एक्सपेरिमेंट में एक पत्थर को हमने सीधा ऊपर फेंका 10√3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। 1 सेकेंड बाद ये पत्थर जिस हाइट पे होगा उसी हाइट पे हमारा प्रोजेक्टाइल भी है, क्योंकि इसका वर्टिकल मोशन और इसका वर्टिकल मोशन दोनों आइडेंटिकल है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। एक पत्थर को 10√3 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, 1 सेकेंड बाद उसकी हाइट क्या है? यही हमारे दीवार की हाइट, इसको एच लिख लेते हैं। इसी हाइट पे वॉल को प्रोजेक्टाइल हिट करेगा। ui की वैल्यू कितनी है? 10√3, टाइम 1 सेकेंड, g 10, √3 को 1.7 लिख दूं तो ये 17 और ये आ गया 5, करीब करीब 12 मीटर। तो ये प्रोजेक्टाइल 12 मीटर की हाइट पे बॉल को हिट करेगा। ये भी कैलकुलेट करोगे तुम, वही आएगा। 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने में 10 की स्पीड से 1 सेकंड का समय लगा। इस 1 सेकंड में हाइट अटेंड h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करने से 12 मीटर आ गया। सो this is how trajectory equation can be used in solving questions. Let me ask you a couple of more questions on different things that we have learned by now. Suppose x is horizontal direction and y is vertical direction, and here I am drawing path of 3 different projectiles. These 3 projectiles have been projected from same point on the ground, and their path, let me say this is projectile 1, this is 2 and this is 3. So path of these 3 projectiles has been shown. This 1 and 2 attain equal maximum height, they attain same height. One stone was thrown, it takes a path like this. The other stone was thrown from same point, it takes a path like this. And the third stone takes a path like this. And height attained by 1 and 2 both are same. Height attained by 3 is much smaller. Please tell me, what can you say about the time of flight of these 3 projectiles? Which projectile has maximum time of flight and which one has least time of flight? Compare the time of flight of 3 projectiles. Please pause the video for a moment and think about it. Please, all of you,
You should pause the video and think about it. Which projectile has largest time of flight and which one has least time of flight? See, the maximum height attained by a projectile during its course of motion is given by uy square by 2g. This is the maximum height attained by any projectile during its course of motion. It depends only on uy. इधर कितनी वेलोसिटी थी इस पे डिपेंड करता है मैक्सिमम हाइट. तो बिकॉज प्रोजेक्टाइल 1 और 2 ने इक्वल हाइट अटेन किया है तो हम कह सकते हैं we can say that 1 or 2 will have same y component of velocity. प्रोजेक्टाइल 1 और 2 की y डायरेक्शन की वेलोसिटी डेफिनेटली इक्वल रही होगी. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू अटेन इक्वल हाइट. क्यों? हाइट g 2g तो सबके लिए सेम है. uy जिसका बड़ा होगा उसका हाइट बड़ा होगा. अगर दोनों के हाइट सेम है मतलब uy दोनों की सेम है. और जो ब्लू वाला है प्रोजेक्टाइल 3 उसकी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डेफिनेटली कम है, इसीलिए वो कम हाइट तक गया. एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन uy ओनली. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन uy ओनली, नथिंग एल्स. मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ डिपेंड ऑन uy ओनली. So we know that 1 and 2 have same value of uy because they have attained same height. 1 और 2 का uy ऊपर की वेलोसिटी सेम थी तभी सेम हाइट तक है. तो ऊपर की वेलोसिटी अगर सेम है तो इनके टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होंगे. So thereby we conclude that time of flight of 1 will be equal to time of flight of 2 beyond doubt. प्रोजेक्टाइल 3 y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम होगी. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 3 is less than time of flight of 1 and 2. Just by looking at this diagram, we can say that time of flight of projectile number 3 will be smaller than time of flight of projectile 1 and 2. Okay. Here is another question. Please do it on your own. All of you should give it a try. I request all of you to try after pausing the video. देखिए, मैं यहां खड़ा हूं पॉइंट 2 पर. मुझसे 10 मीटर आगे एक कार है रोड पे एंड द कार इज ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा. मैं खड़ा हूं, मुझसे 10 मीटर आगे एक कार है जो मुझसे दूर जा रही है, ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी भी. यहां से मैंने एक बॉल प्रोजेक्ट किया at a speed of 20 meter per second, making an angle of 53 degree with horizontal. And the question says that this ball hits the car. जिस समय कार मुझसे 10 मीटर दूर है उस समय मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया. ठीक इस इंस्टेंट पे मैंने बॉल को थ्रो किया एंड द क्वेश्चन सेज दैट बॉल हिट्स द कार. बॉल हिट्स द कार. फाइंड द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द कार. कार किस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी? If it was observed that the ball hits the car, the ball hits the car, find the constant velocity v of the car. The ball hits the car. Important. वीडियो पॉज करें, ट्राई करें.
ऐसा देखो, ये बॉल का ट्रेजेक्ट्री, बॉल इस पाथ पे चला 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 और यहां कार से टकरा गया। बॉल कार को लगा, उसका मीनिंग है बॉल और कार सेम टाइम पे सेम जगह थे, कुछ ऐसा मोशन हुआ। कार तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ये बॉल को यहां से फेंका, ये कार अपने रास्ते जा रही है जा रही है जा रही है, ऐसा। ये कार चल रही है, बॉल फेंका बॉल फेंका बॉल फेंका, ये तो कार और बॉल सेम टाइम पे यहां थे, इसलिए बॉल कार को लगा, राइट। बॉल कितनी देर तक फ्लाइट पे रहा, लेट अस कैलकुलेट दैट। सबसे पहले बॉल की एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 20 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री इज 3/5, so this will become 12 meter per second. Y component of velocity is 20 sin 53 degree. Sin 53 degree is 4/5, so 16 meter per second. 20 मीटर पर सेकंड के दो टुकड़े करती है, इधर 16 और इधर 12 और इधर 16. नाउ व्हाट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल? बॉल कितनी देर तक हवा में रहा? वेरी इजी, 2u sin theta by g, which is basically 2ui by g. एक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2ui by g, अभी बात कर रहे थे हम लोग. सो ui is 16, g is 10, 3.2 सेकेंड. बॉल वॉज इन फ्लाइट फॉर 3.2 सेकेंड. देखो 3.2 सेकेंड में ये बॉल कितनी दूर आगे गया? व्हाट इज रेंज ऑफ द बॉल? Range is u square sin 2 theta by g. But okay, we can directly calculate it like this. टोटल 3.2 सेकेंड तक हवा में रहा, और जितनी देर तक ये हवा में रहा, ये कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहा था. बॉल की कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड है 12. सो ux स्पीड से t सेकेंड तक चला, 12 की स्पीड से 3.2 सेकेंड तक ये इधर बढ़ता रहा. सो द रेंज इज 38. Okay, so the range is 38.4 meter. प्लीज देखिए, बॉल 3.2 सेकेंड तक हवा में रहा, and in this 3.2 second is traveled through a horizontal distance of 38.4 meter. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखें तो इन दिस 3.2 सेकेंड इंटरवल दिस कार ट्रेवल्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 28.4 मीटर. द कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 28.4 मीटर in 3.2 सेकेंड. देखिए, सोच के देखिए भाई, बॉल को फेंका, कार यहां थी, ये बॉल 3.2 सेकेंड तक चलती रही, ये कार को लगी. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बॉल यहां गिरा, उस समय कार यहीं पे है, तब कार को लगी कैसे? बॉल जिस समय यहां गिरा, कार यहां पहुंच गई, तो भी बच गई कार. बॉल कार को लगा मींस बॉल उस समय ग्राउंड पे गिरा जब कार यहां थी. तो जितनी देर में बॉल यार डिस्टेंस चला 38.4, उतनी देर में कार ये डिस्टेंस चला. जैसे चल रहा है, बॉल यहां से स्टार्ट हुआ, कार यहां से, तो उसी 3.2 सेकेंड में कार यहां से यहां गई. ये डिस्टेंस कितनी है? 38.4, उसमें 10 कम कर दो. 38.4 उसमें 10 कम कर दो. ये 28.4 मीटर का डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 3.2 सेकेंड. देयरफॉर स्पीड ऑफ कार इज 28.4 मीटर by 3.2 सेकेंड. You can do the calculation yourself, so many meters per second.
Now students, let us move on to discussing an even simpler case of projectile motion, which is sometimes known as horizontal projectile. Projectile motion का ये rather simplest case है. Suppose you are standing on a tower of height h. You are standing here and you project a ball horizontally, giving it a speed u. ऐसा मैं एक हाइट पे हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा फेंका. This particular object also takes a parabolic path and hits the ground like this. Now, let us analyze different aspects of this kind of projectile motion. For simplicity, let this be origin and let this be our x direction. Vertical direction, vertically downward direction, let us take it as पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को y डायरेक्शन मान लेते हैं. ऐसा चलो, वर्टिकल डाउनवर्ड को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि सारी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब इधर ही है, तो पॉजिटिव लिखेंगे. अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो सभी चीजें निगेटिव लिखनी पड़ेंगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव y ले लो, बहुत अच्छा है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. दैट इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड. गलती नहीं होगी अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को वाई लो, तो भी फिजिक्स वैसा ही रहेगा, सॉल्यूशन वैसा ही रहेगा. बट इट विल बी मच इजियर इफ वी टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. हाउ लॉन्ग द स्टोन विल बी इन फ्लाइट, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल हिट द ग्राउंड. After how much time the stone will hit the ground. देखिए ध्यान से, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी u. ये पूरी वेलोसिटी x डायरेक्शन में. व्हाट इज y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? 0. देयर इज नो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनिशियली. What is x component of acceleration? 0. What is y component of acceleration? G. Plus g this time. Downward is our positive direction. So, y component of velocity is g downward. Y component of acceleration is g downward. In x direction there is no force, so there is no acceleration. Initial velocity in x direction is u. Initial velocity in downward direction is not there. Actually, अगर ग्रेविटी नहीं होती और आपने बॉल को ऐसा फेंका होता तो बॉल वुड हैव ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, क्योंकि आपने वेलोसिटी इधर दी, इधर तो कुछ दी नहीं. पर ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन है इधर, तो बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है. ठीक है, आपने वेलोसिटी इधर दी, इनिशियली बॉल इधर चला, पर ग्रेविटी उसको खींच रही है. सो बिकॉज ऑफ दैट पुल gradually the ball acquires a downward velocity also. x डायरेक्शन में तो उसके पास हमेशा यही वेलोसिटी रहेगी जो आपने दी है, पर थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो उसके पास एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी. बॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी कुछ होगी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वेक्टर सम. कर्व पाथ पे चलने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलाउ होती है. यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यही बॉल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है. तो पॉइंट इज कि थोड़े समय बाद उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी डेफिनेटली होगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. नाउ वाई डायरेक्शन में इस बॉल का मोशन ऐसा ही है जैसे कि आपने एक बॉल को छोड़ दिया, जस्ट रिलीज कर दिया, यहां से छोड़ दिया और वो नीचे गिर रहा है. इस बॉल का वर्टिकल मोशन और इस बॉल का वर्टिकल मोशन दोनों आइडेंटिकल है. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ दिया, नीचे पहुंचने में t सेकंड लगे, वो ऑब्जेक्ट खो गया.
उस ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ा, उसको नीचे जाने में t सेकेंड लगे, अगर इसी हाइट से एक छोड़ा, t सेकेंड में नीचे पहुंचा, इसी हाइट से हम ऑब्जेक्ट को छोड़े नहीं, हॉरिजॉन्टली यू स्पीड देके फेंके, हॉरिजॉन्टली, वो ऐसे पाथ पे चल के जाएगा, लेकिन उसको भी नीचे जाने में वही t सेकेंड लगेगा। इस पत्थर को जिसको छोड़ा, उसको नीचे जाने में अगर t सेकेंड लगता है, इसको भी यहां से यहां तक आने में t सेकेंड ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन सेम है भाई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सेलरेशन g, इसका भी g। जितनी देर में यहां होगा उतनी देर में ये भी इसी हाइट पे होगा, जितनी देर में ग्राउंड पे उतनी देर में ये भी ग्राउंड। सिर्फ एक फर्क है, ये सीधा चल रहा है, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने की वजह से ये कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो धप से यहां गिर गया, लेकिन वो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो वो इधर चला आएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। एक बॉल को छोड़ा, एच नीचे जाने में कितना टाइम लगता है, तो आपको याद होगा √2h/g। अगर भूल गए तो याद करा दूं, यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन से पूछेंगे कि भाई y की वैल्यू h होने में कितना टाइम लगेगा, यहां से चला h डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगेगा, ui 0 था, यही टाइम ऑफ फ्लाइट। 2h/g स्क्वायर रूट ऑफ दिस, 2h/g स्क्वायर रूट ऑफ दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इस स्टोन के लिए, एंड सो इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस स्टोन ऑल्सो। दोनों स्टोन के टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल सेम होंगे। अब कोई आपसे अगर पूछे व्हाट इज दिस रेंज, व्हाट इज दिस रेंज, बता सकते हैं आप? ये सब याद रखना है कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है। व्हाट विल बी रेंज, व्हाट इज दिस रेंज? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ux into t. Throughout the flight, the projectile is traveling with horizontal speed u. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जो स्पीड दे दी वो कांस्टेंट है। प्रोजेक्टाइल लगातार u स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो t सेकंड तक अगर हवा में उड़ता रहा, t सेकंड तक हवा में उड़ता रहा तो कितनी दूर जाएगा, u into t. So u into t means u into √2h/g. So horizontal range of the projectile is given by this expression. The path is a parabola. The path is a parabola. ये आप प्रूव कर सकते हो। पाथ तो पैराबोला है ही, लेकिन अगर ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखने को कहा जाए तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। चलो एक नया डायग्राम बना देता हूं। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को तुमने, ये ऑरिजिन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। एक प्रोजेक्टाइल को तुमने यू स्पीड से ऐसे फेंका, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। टी सेकेंड पे प्रोजेक्टाइल यहां है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। ये y है, ये x, ठीक है। x और y में रिलेशन लिखना है, स्टेप्स वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले थे ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। x को t के फंक्शन में लिखो, क्या लिखोगे, ut। अभी तो पढ़ाया कि प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट स्पीड u से x डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो अगर टाइम t सेकेंड पास हो चुके हैं इसको फेंके हुए, यहां है x डायरेक्शन में u स्पीड से चलता हुआ कितनी दूर आया, ut, और y डायरेक्शन में हाफ gt स्क्वायर। ये कैसे पता, यहां लिखा है। इस y डायरेक्शन में इसका मोशन ऐसे ही है जैसे कि ये गिरते हुए पत्थर का, इसको 0 वेलोसिटी से फेंका, t सेकंड में कितना नीचे आ चुका है,
t सेकंड में कितना नीचे आ चुका है, y इज इक्वल टू 0, y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन g, so half gt square. Now from 1 we find the value of t as x by u. Put into 2. ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखने का तरीका ही है, x को t के फंक्शन में लिखो, y को t के टर्म्स में लिखो, दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दो. तो भाई x को t के फंक्शन में लिखा, y को t के फंक्शन में लिखा, पहले इक्वेशन से टाइम की वैल्यू ये आई, इसको इसमें रख देना है. y विल बी हाफ g t स्क्वायर. इस t की जगह x बाई यू लिख दिया. सो y इज इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन ऐसा है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर. ये कांस्टेंट है, सो डेफिनेटली दिस इज अ पैराबोला. Whenever y is a quadratic function of x, y versus x graph will always be a parabola. A quick example, suppose there is a helicopter on a flood relief mission. हेलीकॉप्टर इसलिए कि एरोप्लेन का डायग्राम बनाना मुझे नहीं आता. हेलीकॉप्टर इज मच इजियर टू ड्रॉ. लेट अस से दिस हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली जा रहा है. ये बाढ़ आई हुई है, यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे घर हैं और यहाँ लोगों को खाना देना है. चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इधर इधर चारों तरफ पानी है. हेलीकॉप्टर का पायलट एक्सपीरियंस्ड है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन समझता है. लेट अस से दिस हाइट इज 400 मीटर. ठीक है, 400 मीटर हाइट पे एक हेलीकॉप्टर कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. वो खाने के पैकेट्स छोड़ता है, खाने के पैकेट्स यहां से ड्रॉप करता है. हेलीकॉप्टर का पायलट अगर इनएक्सपीरियंस होता तो ये घर के ऊपर आने के बाद खाने के पैकेट को छोड़ता, लेकिन ये एक्सपीरियंस पायलट काफी पहले, एक्स डिस्टेंस पहले ही फूड पैकेट्स को छोड़ देता है. ध्यान देना, जैसा शायद हमने पहले भी कहीं कहा था, फूड पैकेट को छोड़ने से वो फूड पैकेट सीधे नीचे नहीं गिरेंगे. फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकेंड होगी. तुम जिस बस में बैठे हो, जो बस की वेलोसिटी है वही तुम्हारी वेलोसिटी. तुम बस से जंप कर जाओ तो तुम्हारी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, तुम भी बस की डायरेक्शन में आगे चलते चले जाओगे और इसलिए काफी दूर जाके गिरोगे. ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है. बॉडी विच इज मूविंग वांट्स टू रिमेन इन मोशन. तो फूड पैकेट, हेलीकॉप्टर के अंदर मैं बैठा हूं, मेरे हाथ में फूड पैकेट की वेलोसिटी वही जो मेरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड. छोड़ा तो छोड़ने से इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, छोड़ने से इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, इट विल स्टिल बी 50 मीटर पर सेकेंड. जैसे ही खाने के पैकेट को छोड़ा, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं, हॉरिजॉन्टल 50 मीटर पर सेकेंड हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी. पर हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट में फर्क है. हेलीकॉप्टर का इंजन चल रहा है, पंखा घूम रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरता, एक अपथ्रस्ट, एक अपवर्ड फोर्स है. लेकिन फूड पैकेट जिसको छोड़ दिया, उसमें कोई इंजन नहीं लगा है, अब ग्रेविटी उसको खींच रही है, इसलिए वो अभी जो प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे थे उस प्रोजेक्टाइल की तरह चलेगा और यहां जाके गिरेगा. अगर पायलट ने ठीक से कैलकुलेशन किया है तो ये फूड पैकेट ठीक ठीक घर पे जाके, घर की छत पे गिरेगा, लोगों को खाना मिल जाएगा. सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. घर से कितना पहले उसको फूड पैकेट छोड़ देना चाहिए जिससे कि फूड पैकेट ठीक यहां बैठे लोगों को मिल जाए. नाउ इट इज वेरी इजी, वी ऑल नो दैट. ये जो प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स.
x कितना होगा, अभी अभी फॉर्मूला लिखा था तुमने, देखो ऐसा, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 400 मीटर की हाइट से 50 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका, 400 मीटर की हाइट से 50 की वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका, वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पे यहां आके गिरा, u की वैल्यू 50 टू h g, ये कैलकुलेट कर लो, सो मेनी मीटर्स इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय फूड पैकेट यहां गिरा उस समय हेलीकॉप्टर कहां है? ठीक घर के ऊपर, ठीक है यहां पे। क्यों? हेलीकॉप्टर का इंजन चल रहा है इसलिए वो गिरता नहीं, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। फूड पैकेट गिर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल उसकी भी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल दोनों का हमेशा सेम होगा। जब फूड पैकेट यहां है तो हेलीकॉप्टर ठीक इसके ऊपर यहां, दोनों ने इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब फूड पैकेट यहां है, हॉरिजॉन्टली इतना आ गया है, तो हेलीकॉप्टर भी इतना ही आ गया है, हेलीकॉप्टर ठीक इसके ऊपर है, राइट। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ आए, विथ लॉट ऑफ हार्ड प्रैक्टिस यू मे बी एबल टू लर्न how to do the questions, but keep in mind that though we should try to memorize all the formulae, but we should also know the basic fundamentals। वो फॉर्मूले कहाँ से आए वो हमेशा हमारे दिमाग में होने चाहिए। Until and unless you know the fundamental approach, you will not be able to solve many of the problems। So just by rote learning of formulae, you may not be able to solve the questions। So though you should memorize the formulae, but it is necessary that you should always understand how the formulae were derived, what was the basic thought process behind deriving each formula। So please study keeping this in mind। So thank you students, thank you।